This call is now being recorded. So is there any question from your side? So we were studying the instruction cycle. We study about the instruction cycle. So we are continuing the instruction cycle. Generally, whenever we talk about the instruction cycle, it is the 6 phases have to be contained by the instruction cycle. So basically what exactly we want to say. We want to say whenever we want to execute any of the instruction. So whenever we want to execute any of the instruction, then in that situation, some of the steps occur inside the memory, and finally the instruction get executed. So whatever the steps occur with the instructions, that is basically the instruction cycle. So we said that 6 phases are there whenever we talk about the instruction cycle. So the first phase is basically the fetch. You can say the access phase or fetch phase. सर आपकी वॉइस इको कर रही है. वॉइस इको कर रही है. वाई इकोइंग? सर स्लो भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा. क्या अभी भी इको कर रही है? नो सर. ना ओके ना? यस सर. ठीक. So basically we want to say that instruction cycle is the 6-phase cycle. First is basically known as the fetch, and fetch is basically known as the access. So fetch an instruction from memory. It is the first step whenever we want to access any of the instruction. Then the instruction is basically present with the memory. So we are saying the first of all, the fetch means to say access of an instruction from the memory. Next, decode the instruction. Then calculate the effective address of the operand and fetch the operands from memory and execute the operation, and finally store the result in the proper place. So what the proper place is? Again, it is the memory. So fetch first instruction is basically known as the first phase is basically known as the fetch phase. Then the decode phase is there. Then after that decoding has been done, then calculate the effective address phase is there. Then operand fetching is there from the memory as per the instructions whatever we have fetched, and then execute the operation, and finally whatever the output come, that is going to be stored at the another location in the memory. So this is the 6-phase instruction cycle, and it always come in your examination. Some instructions skip some phases. Maybe possible some of the instructions are there that will not passes through all 6 phases. So we are saying some of the instructions may be there which can skip some of the phases. The effective address calculations can be done in the part of the decoding phase. Whenever we talk about the effective address calculations, it can be done in the part of the decoding phase. So storage of the operation result into a register is done automatically in the execution phase. So whenever we want to execute this instruction cycle, whenever we want to execute the instruction, then basically the 4-stage pipeline is going to be discussed always. So pipelining is a technique by which instruction get executed with the system. So fetch,
So four-stage pipeline, you can understand the four-stage pipeline, and the four-stage pipeline is basically the first is basically the FI, that is fetch and instruction from memory. Second, the pipeline consists of decode the instructions and calculate the effective address of the operand. The third pipeline is basically represent the fetch the operand, that is FO. And final, the pipeline consists of the execute the operation is there. So four-stage pipeline may be designed for execution of any of the instructions. In general, the instructions have the 6 phases and can be passed on, can be get the result by using the four-stage pipeline here. So this four-stage सर pipeline, वंस अगेन फिर रिपीट कर दीजिए किसको रिपीट किए कैपिटल? सर इसी को सर रिपीट कर दीजिए फिर से 4 स्टेज पाइपलाइन So basically we are saying here, whenever we talk about the execution of any of the instruction, it's generally having the 6 phases. The 6 phases are fetch an instruction from the memory, then decode the instruction. The third phase, calculate the effective address of the instructions, whatever you have. Again, whenever the effective address of the operand has been fetched out, then fetch the exactly the operands present in the memory. Then execute the operation onto the operands, and finally store the result into the proper memory or any other place where you want to save your result. We are saying this 6 phases pipeline, this 6 phases execution of an instruction may be get executed by using the 4-stage pipeline. The 4-stage pipeline having the 4 stage, that is FI, that is fetch an instruction from memory. Second stage may be the DA, that is the decode the instructions and calculate the effective address from the of the operands. Third pipeline is basically the FO, that is the fetch the operand, that is the one of the step of the 4-stage pipeline. And last, that is the execute, that is EX, that is execute the operation is there. So 4-stage pipeline can be used for accessing any of the instructions, and in general the instructions having the 6 phases. So the instruction pipeline, the execution of the 3 instructions in a 4-stage pipeline. So we basically saying that 3 instructions are there. We want to execute the 3 instructions in a 4-stage pipeline. So whenever we passes any of the instructions, such as the 3 instructions are there, that ith instruction is there, I plus 1th instruction is there, and I plus 2th instruction is there. So basically your program having the 3 instructions, and we want to execute these 3 instructions. We have a 4-stage pipeline. So these all instructions have to be passes through all the stages of the pipeline. So basically the first instruction, that is the ith instruction, that is going to be passed inside the pipeline. So 4-stage pipeline is available there. So the ith instruction will get the first stage, that is the FI, that is fetch the instruction from the memory. Then the same instruction will go from the DA phase, that is decode the instruction, decode the operands at there. And the third is basically the FO, that is fetch an operand. The third is basically fetch an operand stage is there. And fourth is that is execute the instruction, that is execute the operation. So basically each and every instructions. So we are saying here that each and every instruction, either it is the ith instruction, I plus 1th instruction, I plus 2th instruction, this will passes through all the stages of the pipeline always. So pipeline will be look like this, that ith instruction will get executed first, I plus 1th instruction will get executed second time, and I plus 2th instruction will get executed at the last at there. So this is the pipeline has been shown up here. So instruction execution in a 4-stage pipeline. So basically we have divided the pipeline in the 4 segments: segment 1, segment 2, segment 3, and segment 4. So first segment is here, that is fetch the instructions from the memory.
and whenever the instructions has been fetched from the memory, it is go in the segment 2, and in the segment 2 basically we want to decode the instructions and calculate the effective address. So in the segment 2 basically we will calculate the effective address as well as decode the instruction on behalf of the effective address. Then the conditions came. If this conditions yes, if this condition is okay, then in that situations update the PC value, and then after that empty the pipe, and again the instruction get executed from the initial position. If the branch is no, then in that situations fetch operand from memory. It means to say we are saying if there is no conditions in the program, then in that situations we will directly fetch the operand from the memory. Then after that execute the instructions. If interrupt came, then again may be possible that you have to go from all the stages of the pipeline. And if the no interrupt came, then in that situations we are saying that the instructions had get executed. So this is the instructions and branch has been discussed here, and this is the instruction execution in a 4-stage pipeline has been given at here. Now whenever सर इसमें ये ब्रांच क्या है सर? ये ब्रांच कोई कंडीशन है, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया void main int xyz x assign the value 3 y हेलो सर. 5. हेलो सर ये जो टेबल है इसका क्या मतलब होगा? टेबल में सिर्फ स्टेप्स को दिखाने की कोशिश की गई है. whenever you are taking the loop या whenever you have the multiple instructions, the सर तो multiple ये हमारे लिए कंपलसरी रहेगा बनाना टेबल, या फिर हम सिर्फ ये दिखा देंगे प्रोसेस तो काफी रहेगा? प्रोसेस दिखा देंगे काफी रहेगा. टेबल इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. ओके ओके सर. ठीक है ना, द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, टेबल इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट. ठीक है ना, इज इट ओके? यस सर. हाँ, क्योंकि प्रोसेस में जो ब्रांच है, ब्रांच को थोड़ा सा समझ लीजिए. एक बार में आपने क्वेश्चन पूछा ब्रांच इज व्हाट. So basically we want to say that suppose you have a program, and program is what we want to say that you are making a program in C language. So you want to make the program for addition of the two number, but you have defined a condition there. If x is greater than y, then do the addition, otherwise not do the addition. सर इसमें टर्मिनेशन कैसे होगा सर? इसमें सर ये जो फिगर है इसमें सर टर्मिनेशन कैसे होगा सर? एग्जीक्यूट हो गया, इंटरप्ट हो गया, आप चाहते हैं टर्मिनेट दिखा लीजिए. भाई इंटरप्ट आपका कोई भी अगर इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट अगर आता है तो इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए चला जाएगा. अगेन आपका फैच इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो जाएगा. अगर इंटरप्ट नहीं आता है तो आप ये मान लीजिए टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर. तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा पीसी वैल्यू उठाते हुए. ये जो नो लिखा हुआ है, नो के बाद क्या है कि यहाँ पर आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो बार बार क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, लाइक दैट. तो सीपीयू मैक्सिमम टाइम आइडियल स्टेज में रहता है, लेकिन क्या है कि फिर भी दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम. तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि इंटरप्ट के बाद क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन इंटरप्ट के बाद अगर और भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो क्या होगा, अगेन एग्जीक्यूशन करेगा. तो इंटरप्ट क्या, आपने यूजर से इनपुट मांग लिया, आपने यूजर से क्या मांग लिया, इनपुट मांग लिया, तो इंटरप्ट हैंडलिंग आ गया. तो आपने कहा कि एक्स की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, वाई की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा. तो स्कैनएफ आपने लगा दिया सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, स्कैनएफ %t %x %y. तो आपने क्या किया कि दो आपने इंटरप्ट लगा दिए वहां पर. तो जब तक वो इंटरप्ट हैंडलिंग नहीं होगा तब तक वो प्रोग्राम आइडियल स्टेट में पड़ा रहेगा और आपका सीपीयू फ्री रहेगा. लेकिन जैसे ही इंटरप्ट उसको मिलेगा तो अगेन क्या होगा, पीसी वैल्यू अपडेट हो गया, ठीक है ना, पाइपलाइन एम्प्टी हुई, अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगा उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया. अगर किसी भी तरह का कोई इंटरप्ट नहीं आता है तो एग्जीक्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट. एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है भाई, आपने विदाउट एनी ब्रांचिंग के एक सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना दिया जिसमें कोई भी ना तो लूपिंग है, ना सिलेक्शन है, ना तो आपने इफ लैडर इफ एल्स स्विच केस यूज किया है, ना आपने फॉर व्हाइल डू व्हाइल यूज किया है. तीनों में से कुछ भी यूज नहीं किया. तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया. तो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी हुआ.
फिर डिकोड द इंस्ट्रक्शंस एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस हुआ, फिर फैच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी हुआ, देन एग्जीक्यूट हो गया। अब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आपके प्रोग्राम में तो और भी इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं, कंडीशंस है नहीं कहीं पर भी, लूपिंग कहीं आपने लगाई नहीं, तो क्या होगा, अगेन अगेन आपका इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, फर्दर जो आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस का जो सेट आपने दिया है प्रोग्राम के अंदर, तब तक वो आपका पूरा नहीं हो जाता, और फाइनली एक समय क्या हो जाएगा, टर्मिनेट द प्रोग्राम, एक जगह जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो ग्राफ की, फ्लो चार्ट की अपनी एक लिमिटेशंस हो सकती हैं, इसलिए ऐसा प्रोग्राम को बनाया गया। इज इट ओके? सर सर बताइए। सर ये अपडेट और एम्प्टी पाइप ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर ये? बेसिकली ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है, ith इंस्ट्रक्शन, दिस इज द ith इंस्ट्रक्शन यू वांट टू एग्जीक्यूट। और इसको थोड़ा सा डीप में और समझ लें, मैं एक प्रोग्राम यहाँ लिखता हूं, ठीक, I write a program here. This is it visible to everyone? Yes, sir. मैं इसके साइज को भी बढ़ा, I am writing a program here. मैंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, x, y, z, this is, then after that may be possible scanf हमने किया, scanf करने के बाद this is %d, again %d, and then %x, %y। इसमें से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, दिस इज द इफ दिस इज x is greater than y, I write there f x is greater than y, then inside it I write this is z assign the value x plus y। क्या लिखा, this is z assign the value this is x plus y, then प्रिंट भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। We are writing this program, एक सिंबॉलिक प्रोग्राम लिखा है हमने, ठीक है ना, क्योंकि सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं और एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ रहे हैं, तो अब ये 4 स्टेज पाइपलाइन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। अभी इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हैं ढंग से देखा जाए तो अभी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो अभी यहां से चलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन आपका ये हो गया, int xyz सेमीकोलन ओवर, दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका स्कैनफ वाला हो गया, तीसरा इंस्ट्रक्शन आपका इफ का हो गया, चौथा इंस्ट्रक्शन ब्रेसेज हो गया, पांचवा z assign the value x plus y हो गया, छठवां printf %z हो गया, सातवां इंस्ट्रक्शन अगेन, एंड आठवां इंस्ट्रक्शन ये अगेन, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके। तो एग्जीक्यूशन 3 इंस्ट्रक्शंस इन द 4 स्टेज पाइपलाइन। तो कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर हैं, ठीक। इवन वर्ड में भी अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, तो 10 इंस्ट्रक्शंस हो गए। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो i+1 i+2 अप टू एंड सो ऑन i+10 तक चला जाएगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो 4 स्टेजेस से गुजरेगा। 4 स्टेजेस क्या है, हैज द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फैच करो, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करो, देन फैच द ऑपरेंड, जब आपका एड्रेस, जब डिकोड द एड्रेस, जब एड्रेस डिकोड हो गया तो फैच द ऑपरेंड, एड्रेस के बिहाफ पर ऑपरेंड को फैच करो, देन एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो कुछ भी आया है उसको क्या है, आगे फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट वी आर सेइंग कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन, this particular instruction int xyz will passes through all the phases, will go all the stages, will go for fi, will go for da, will go for fo, will go for execute, and finally the instruction get executed. Now what? So we will come at here, this slide है ना, fetch the instructions from memory. So this is the int xyz, we are fetching the instructions from the memory. Decode the address, we are decoding the address of xyz here. If the branch came, by the way no branch is there, okay, but if the branch came, तो पहले हम no branch is there, then fetch the operand from memory, so xyz के corresponding जो भी operand है उसको fetch करेंगे and execute the instruction, execute हो गया। अब execute होने के बाद क्या, interrupt आया नहीं आपका, तो कहाँ चलेंगे, again execute the instructions, इस instruction से कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा,
प्रोसेसर कहाँ पहुंच जाएगा, स्कैनफ वाले इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाएगा। जब स्कैनफ वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा तो अगेन सारे स्टेप सारी स्टेजेस से जाएगा। सबसे पहले फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, तो एक्स एंड वाई को डिकोड किया जाएगा। देन अभी कोई कंडीशंस तो आया नहीं, तो कहाँ पहुंचेंगे, फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, एक्स एंड वाई के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेंड है उसको फैच करने की कोशिश होगी। फिर आपका एग्जीक्यूट होगा, तो स्कैनफ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद अभी भी कोई इंटरप्ट आया, यस इंटरप्ट आया। एक्स और वाई को यूजर से हमने क्या पूछा, इनपुट पूछा। तो एक्स एंड वाई का अगर हमने इनपुट पूछा है तो इंटरप्ट हैंडलिंग किया, कुछ हमने डाटा को यहाँ पर किया अपडेट किया। एक्स एंड वाई का कुछ डाटा हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमारी पाइपलाइन क्या हो गई, पाइपलाइन हमारी एम्प्टी हो गई और ये डाटा अगेन कहाँ चला गया, अगेन इस इंस्ट्रक्शन में फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी के लिए चला गया। तो अगेन द मेमोरी से डाटा क्या होगा, फैच होगा, अगेन डिकोड द एड्रेस होगा, अगेन ऑपरेंड फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये डाटा जा कहाँ रहा है, फाइनली ये डाटा जा तो मेमोरी के अंदर ही रहा है। तो वी आर सेइंग कि फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से हम ऑपरेंड को फैच करते हैं, फिर अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट हुआ, इंटरप्ट इस बार नहीं आया क्योंकि मेमोरी में डाटा मिल चुका था। तो कहाँ पहुंचेंगे हम, कहाँ पहुंचेंगे हम, कहीं नहीं जा सकते। अभी हमें दोबारा इंस्ट्रक्शंस फैच करना है क्योंकि अगले स्टेप पे बढ़ चुके हैं। मनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। हेलो, so you are on to another statement, that is if x is greater than y। अगेन आपने इंस्ट्रक्शन को फैच किया, अगेन एड्रेस कैलकुलेट किया x एंड y का, अब ब्रांच आ गया, x is greater than y ना, ब्रांच आ गया। तो ब्रांच आ गया, या तो नो कोई ब्रांच नहीं है तो कंटिन्यू चलेगा, ब्रांच है तो कहाँ जाएगा, अगेन अपडेट। सर अपडेट सर के बाद बताइए। सर जब ये जो ब्रांच है ये ट्रू होगा तभी तो ना इस पे जाएगा, अपडेट वाले पे। ब्रांच अभी तो ब्रांच चेक होगा ना, ट्रू और फॉल्स की तो बात हो रही है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पहले ट्रू फॉल्स है वो तो सारा अपडेट में जाके पता चलेगा ना आगे चलकर। ओके सर। अगर ये फॉल्स भी रहता है तब भी अगला तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होगा। तो जैसे लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या बनता है, ये ब्रेसेज होता है, तो ब्रेसेज आता है तो कहाँ जाता है, अगेन फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। अब कोई कंडीशंस तो है नहीं, फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, फिर एग्जीक्यूट, एंड फाइनली अब यहाँ से क्या होगा, टर्मिनेट होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ 10 स्टेप थे। 10 स्टेप कैसे दिखाएं लूपिंग में यहाँ पर, तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते ना। तो हम कह रहे हैं कि लूप में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन सच है, कंडीशन ट्रू है। ओके सर। ओके, एक समय तो आ ही जाना है जब आपके प्रोसेसर को आइडियल बैठ जाना है। अगर ये इनफाइनाइट लूप नहीं है तो, अगर ये इनफाइनाइट लूप है तो ऐसे ही चलता रहेगा। एंड फाइनली क्या होगा, एक समय आपकी मेमोरी बफर फुल हो जाएगा, और जब आपका मेमोरी बफर फुल हो जाएगा तो आपका सिस्टम ट्रैप कर जाएगा। तो सिस्टम ट्रैप कर जाएगा तो सिस्टम में फिर बहुत सारी तरह की चीजें करोगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी तरह की एरर आ जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब हमने इतना किया और चीजें चलती रही, इनफाइनाइटली चलती रही, या इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट आ गया तो हम उस पर इनपुट ही नहीं देने के लिए तैयार है, तो कब तक सिस्टम चलता रहे, तो तब तक चलता रहे जब तक कि बफर आपका ओवरफ्लो नहीं हो जाता। तो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी, तो फिर इसकी अगली स्लाइड्स पर हम चलेंगे कि मेजर हजार्ड्स इन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। सर हजार्ड, यस सर सर एक बार खतरा। उसको वापस दिखाइए। सर ये जैसे सपोज लास्ट तक इंस्ट्रक्शन सभी वो डिकोड हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, तो सर ये इंटरप्ट जो होगा तो सर वो किधर से जाएगा, मतलब लास्ट स्टेप इसका क्या होगा सर। ये तो हमने दोनों बताया तरफ से सर साइकिल चलती ही रहेगी, एस हो रहा है तो भी साइकिल चलती रहेगी, नो हो रहा है तो भी साइकिल चलती रहेगी। नो पर भी चलती रहेगी और उस पर भी चलती रहेगी, यस पर भी चलती रहेगी। लेकिन कहाँ जाके अंत होगा इसका, जहां आपके इंस्ट्रक्शंस फिनिश हो जाएंगे, जहां आपके इंस्ट्रक्शंस फिनिश हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन उस टर्मिनेशंस की कंडीशंस को लूप में नहीं दिखा पा रहे हैं। यस यस समझ तो थैंक ये आपके फ्लो चार्ट का लिमिटेशंस हो गया। इज इट सर ओके? यस सर एक यस बात और सर, ये जो ब्रांच से यस और नो वाली कंडीशन है, ये इसका कैसे पता चलेगा कि कब यस हो रहा है और कब नो हो रहा है? ब्रांच में यस का मतलब सर ये कंडीशन जो इज ट्रू, यस का मतलब कंडीशन इज ट्रू। आपने 5 इज ग्रेटर देन 3 दे दिया, मतलब y की वैल्यू 3 दे दी, x की वैल्यू 5 दे दी, तो यस हो गया, ट्रू हो गया। तो कहाँ जाएगा, इस वाले सिस्टम में चला जाएगा।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलेगा, उसके बाद पाइपलाइन एम्प्टी होगी, फिर वही सेम चीजें पाइपलाइन में अकर होंगी। इज इट ओके? एक्स इज 3, वाई इज 5, कंडीशन फॉल्स हो गया, कहां पहुंचेगा? ब्रांच पर जाएगा ही नहीं, ऑपरेंड को फेच करेगा, एग्जीक्यूट होगा और आगे बढ़ जाएगा। आगे अगर ये एंड है तो एंड भी हो जाएगा, तो आपका सीपीयू यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इसको किससे दिखाया? 4 स्टेज पाइपलाइन से दिखाया कि आपने पाइपलाइन बना दी, पहली स्टेज की पाइपलाइन, सेकंड स्टेज की पाइपलाइन, थर्ड स्टेज की पाइपलाइन, फोर्थ स्टेज की पाइपलाइन, 5 यानी पाइपलाइन बना दी आपकी, 7 पाइपलाइन बना दी। 7 पाइपलाइन में क्या है कि आपका डाटा कहां तक गया? लास्ट तक गया, यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, अब इंस्ट्रक्शन सारे फिनिश। जब सारे इंस्ट्रक्शन फिनिश हो गए तो अब क्या? पाइपलाइन से बाहर आ गया, सीपीयू फ्री। ओके ओके सर। तो ये जो दिखाया गया है ये पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को दिखाया गया, लेकिन ये क्लियर दिखाया गया है कि सारे इंस्ट्रक्शन सारे फेज सारी स्टेजेस से गुजरेंगे। इज इट ओके? तो सारे इंस्ट्रक्शन सारी स्टेजेस से गुजरेंगे। लेकिन सर ये टेबल तो समझ में आ नहीं रही है क्या ये? तो टेबल में चारों स्टेप दिखाए, केवल 4 स्टेजेस के चारों पॉइंट दिखाए उन्होंने, यही दिखाया है। वो सर वो डैश डैश है सर, उसका क्या मतलब है? समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी वो। M2 उस समय इंस्ट्रक्शन था नहीं, कोई भी ब्रांच था। ब्रांच में क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन, जैसे ये ब्रांच लगाया, ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच में पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए? ये सपोज इंस्ट्रक्शंस आ गए इंटरनली, लेकिन हो क्या रहा है? 1 2 3 कंडीशन फॉल्स, सीधा कहां पहुंच गया? 8। इज इट ओके? ठीक है सर, मूव फॉरवर्ड। उन्होंने दिखाया है एक रफ फिगर है, ठीक। यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं दे रखा है, ये प्रोग्राम तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया आपको, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं दे रखा है। तो एक रफ है, एक आइडिया ग्रुप में दिखाया है कि सारी स्टेजेस जितनी भी हमारे पास यहाँ पर पाइपलाइन बनती हैं, वो सारे पाइपलाइन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो चारों स्टेजेस से गुजरता है। बेसिकली ये बताने की कोशिश की है। यू गॉट इट? ओके सर, मूव फॉरवर्ड। Now what exactly we want to say? We want to say that is major hazards in the pipeline execution. Hazards means problem. समस्याएं क्या आई, ठीक है ना? तो basically structural hazards are there. Whenever we talk about the structural hazards, it is basically the problem of the resources. Basically we want to say that is the problem of resources. रिसोर्सेज में आपके पास प्रिंटर खराब हो गया, आपके पास मॉनिटर आपका वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड आपका वर्क नहीं कर रहा है, माउस आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लाइट फेलियर हो गया, दैट इज द स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। सो हार्डवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन साइमल्टेनियस overlapped execution cannot be met. So structural hazards that can be solved, वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम की लिमिटेशंस हैं, मतलब सिस्टम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यू कैन परचेज न्यू सिस्टम, तो स्ट्रक्चरल हजार्ड को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि रिसोर्स की प्रॉब्लम है। सेकंड इज डाटा हजार्ड्स। सो डाटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। An instruction scheduled to be executed in the pipeline requires the result of a previous instruction which is not yet available. So basically we are saying कि एक इंस्ट्रक्शंस आपने पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट किया, पाइपलाइन आपकी एम्प्टी हो गई। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, गलती से उसने प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस की डिमांड की, प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पाइपलाइन में है नहीं, तो उस केस में क्या आएगा? डाटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मींस टू से इट इज द हजार्ड ऑफ टाइप डाटा, इट इज द डाटा हजार्ड। तीसरा है कंट्रोल हजार्ड्स आर देयर। कंट्रोल हजार्ड्स कब आएगा? जब कंडीशंस लगेंगी। हमने कहा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 कंडीशंस के केस में हजार्ड आ सकते हैं। तो जैसे जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपने लिख दिया 1, इफ 1, उसके बाद एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल जनरेट द एरर। क्योंकि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप 1 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, -10 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, इसका मतलब ट्रू शो होता है। सी और सी प्लस प्लस के अंदर ट्रू होता है इसका मतलब, लेकिन जावा उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। जावा और सी शार्प में उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी है ही नहीं, तो दैट विल क्रिएट द हजार्ड, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो कंट्रोल हजार्ड्स आर देयर। So branches and other instructions that change the PC make the fetch of the next instruction to be delayed. So basically we are saying कि जो डिले हुआ, जो PC का इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना था, PC के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है, लेकिन क्योंकि ब्रांच आ गया, तो ब्रांच आने की वजह से कंडीशन फॉल्स हुई,
कंडीशन फॉल्स हुई तो पीसी अपने से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करना चाहता था, लेकिन फॉल्स होने की वजह से 10 इंस्ट्रक्शंस आगे शिफ्ट हो गए। तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक कि आपकी पीसी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट आउट ना करने लगे, तब तक क्या है उसमें हजार्ड। सो ब्रांचेज एंड अदर इंस्ट्रक्शंस दैट चेंज द पीसी मेक द fetch of the next instructions to be displayed, to be delayed. So jump, id, p, any of the program and program instructions may be possible, and then we are saying again it is passes through the आपका that is the pipeline stages. So hazards in pipeline may make it necessary to install the pipeline. So pipeline interlog is there, that is detect hazards, install until it is cleared. So there are three types of hazard that can be come in your, whenever you want to execute your instruction, then three type of hazard may become. One is basically the structural hazard, that is basically related to the architecture of the system, that is basically related to the hardware part of your system. Second is data hazard. Data hazard is basically the hazard due to the instructions within the pipeline that we want to fetch a previous instruction of such type which is not present in the pipeline right now. Then such type of hazard may come and it is known as the data hazard. Third is the basically control hazard. The PC is basically handling the instructions. Yeah, PC having the address of the next instructions, but due to the control hazard has been come, the CPU want to shift onto the further leaving lot of instructions and go on to 10 steps further. Then in that situations, the PC value have to be get updated and it will take time. And up to that time, the control hazards has been come in your system. So basically, whenever we study about the hazards in the pipeline, these three type of hazards have to be studied by us. इतना clear हुआ? यस सर। Hello. So major Yes, hazards. sir. This is a very important question. पेपर में हमेशा आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर का बनेगा तो केवल आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, what do you mean by structural hazard, what do you mean by data hazard, what do you mean by control hazard. 7 मार्क्स का बनता है तो इनके डिटेल में जाया जा सकता है। सर तो फिर भी ये एक ही पेज का होगा? बेटा अभी तो इसको डिटेल में है अच्छा। सारा, ओके 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 सर, ओके। मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कितना लिखना है। इसमें लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, आपकी बुक में तो एक लिमिटेशंस दे रखा है, लेकिन अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ा इस पर पूरी बुक लिख जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो जैसे कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, आज की डेट में आपका सिस्टम पैरेलल प्रोसेसिंग ही करता है, ठीक है ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग जब आप पढ़ते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड वहां पे तो बहुत कॉमन हो जाता है। तो जैसे अमेजन वेब सर्विसेज चलाते हैं, तो अमेजन में वेब सर्विसेज चलाते हैं तो वहाँ वर्चुअल मशीन को वर्कआउट करते हैं। तो वर्चुअल मशीन कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर की बात आ रही है, हार्डवेयर की बात आ रही है तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड आना ही आना है वहां पर। तो आप कहां तक जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ओके। लेकिन एक बुक का लिमिटेशन है, तो बुक ने अपना बता रखा है कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, एक पेज पर खत्म कर रखा है टॉपिक, तो आप उतना ही लिखेंगे पेपर में। इससे ज्यादा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर हो सकता है कि पता नहीं, हो सकता है कि पूरा जीवन ही एक टॉपिक पर लगा दें कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड क्या होता है। हेलो, यस सर। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स मतलब दैट इज अ वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि पूरा जीवन ही उसी पे लगाया जा सकता है। तो इतना बड़ा है हार्डवेयर फील्ड, ओके। So occur when some resource has not been duplicated enough to allow all combinations of instructions in the pipeline to execute. Then such type of hazard will generated that will known as the structural hazards. So one of the example has been given with one memory port, a data and an instruction fetch cannot be initiated in the same clock. तो memory port आपको एक दे रखा है, we are saying कि some data is there, we are saying some instruction is there, and we want to fetch both the things from the memory, but the port is only one.
So data and instructions both cannot be fetched from the single port, and that can create the hazard. So there are three instructions, I plus 1, I plus 2 is there. One pipeline we have taken. Then in that situations may be possible if it may create the hazard at this location. May be possible in the second instructions there is no hazard is creating, but at the third instruction execution may be possible the hazard can be created at this location. So the pipeline is installed for structural hazard. Two loads with one port memory. Two port memory will serve without install. Basically, we want to say if we want that two type of item we want to fetch from the memory and the port is only one, then maybe possible the hazard may come. Okay, we want both the instructions at the same time, but port is one. That's the reason only one instructions can be fetched at a time, and second will be fetched at the another time. But if we solve the problem of the port, we can design the multiple port and we can fetch the multiple instructions at the same time at there. So what this port is? Can anyone tell me what do you mean by the port number in the system? Hello? सर रिपीट करिए सर. Can anyone tell me what is the port number in the system? सर स्पेसिफिक एड्रेस टू असाइन द कंप्यूटर. Specific address to which assigned to the computer maybe system. जितना भी पेरिफेरल है आपके पास. सर ठीक है ना? प्रोसेस को पहचानने का वो है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगा उसको पहचानने के लिए जो हमारे पास जो पोर्ट है, मतलब उसके पहचानने के लिए जो हमारे पास एक लॉजिकल नंबर है, दैट इज द पोर्ट नंबर. अ लॉजिकल नंबर इन अ सिस्टम विच बेसिकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्वर. आप इसको ऐसे भी डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. अ लॉजिकल नंबर इन अ सिस्टम विच बेसिकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्वर. ओके, तो सच एज आपके पास सर्वर हो सकता है. तो किसी ने कहा कि हमारे पास मेल करना है, तो मेल के लिए सर्वर है SMTP सर्वर, तो पोर्ट नंबर उसके लिए रिजर्व है ऑलरेडी, दैट इज द 25 पोर्ट नंबर. वेबसाइट के लिए आपके पास सर्वर है, दैट इज द 80 सर्वर है ना, वेबसाइट बनाने के लिए. तो 80 पोर्ट नंबर 80 इज रिजर्व फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट. इवन 8080 इज ऑल्सो रिजर्व फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट. पोर्ट नंबर अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, तो फाइल ट्रांसफरिंग के लिए FTP सर्वर है, तो FTP सर्वर के लिए पोर्ट नंबर रिजर्व है, दैट इज 21. इज इट ओके? आपके पास आपको सच एज ऑरेकल नाम के सॉफ्टवेयर को वर्कआउट करना है, तो पोर्ट नंबर है 1529 से लेके 1526 से लेके 1529 एंड अप्रोक्सीमेटली 10 पोर्ट नंबर रिजर्व में 1530 ऑरेकल सर्वर के लिए रिजर्व है. ओके, तो ऐसे ही पोर्ट नंबर है. तो हर डिवाइस, जो भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड होती है, उसका एक पोर्ट नंबर होता है. टोटल 1024 पोर्ट नंबर रिजर्व हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्ट नंबर किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कभी भी यूज किए जा सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं. तो टोटल जो सिस्टम है, जो आपके पास सिस्टम है, उसके अंदर टोटल जो पोर्ट है दैट इज 65,536 पोर्ट ऑलवेज अवेलेबल. इतना क्लियर हुआ? हेलो? यस सर तो ऑलवेज जितने भी सिस्टम अवेलेबल हैं, कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर 65,536 पोर्ट होंगे ही होंगे. ये बात की बात है कि 1024 स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व हैं, और आप अपने काम के लिए अपने हिसाब से पोर्ट नंबर को भी चूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. ओके, तो जितने पोर्ट उतना हमारा डाटा एक्सेस हो सकता है वन टाइम में. पोर्ट कम उतना ही सीरियली डाटा एक्सेस हो पाएगा, सीरियली डाटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भाई आपके पास पोर्ट एक ही है और आपको मल्टी डाटा सिलेक्शन करना है, और आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चाहिए मुझे, एक ही समय पर चाहिए, तो 1 क्लॉक पल्स के अंदर एक समय में एक ही डाटा एक्सेस होगा, दूसरा डाटा एक्सेस नहीं होगा. तो उतने समय के लिए हमारे पास क्या क्रिएट हो गया? हैजर्ड क्रिएट हो गया. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल. वो आपके स्ट्रक्चरल की प्रॉब्लम है, वो आपके आर्किटेक्चर की प्रॉब्लम है, आर्किटेक्चर को ठीक करने की रिक्वायरमेंट है. इज इट ओके?
हेलो, यस सर। यस सर। जी सर। नेक्स्ट आपका डाटा हैजर्ड है, तो अब इसको कल कर लेते हैं, आज यहीं रोक रोक देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले सर लेते सर हैं। वापस की स्लाइड सर, वापस कीजिए सर स्लाइड। हम्म। सर इसमें सर ये नीचे वाली 2 लाइन सर समझा देना। 2 loads with 1 port memory or 2 port memory will serve without stall. पाइपलाइन इज इंस्टॉल्ड फॉर स्ट्रक्चरल हैजर्ड, 2 Yes sir, लोड्स विद 1 पोर्ट, मतलब एक ही पोर्ट है, 2 लोड हैं, और 2 पोर्ट मेमोरी विल सर्व विद विदाउट इंस्टॉल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ही पोर्ट है, दो चीजें, 2 मेमोरी के डाटा एक्सेस करने हैं आपको, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास 2 पोर्ट हैं, एक मेमोरी से डाटा एक्सेस करना है, एक्सेस हो जाएगा एंड हैजर्ड नहीं क्रिएट होगा उस केस में। आपके पास सिस्टम के अंदर 2 पोर्ट हैं, 2 अलग अलग डाटा आपको एक्सेस करने हैं, एक ही समय पर एक्सेस हो जाएंगे। आपके सिस्टम के अंदर एक पोर्ट है, 2 डाटा एक्सेस करने हैं, एक ही समय पर एक्सेस नहीं होंगे। दैट इज द स्ट्रक्चरल हैजर्ड। वो आपके स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, वो आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को ठीक करने की रिक्वायरमेंट है। दैट्स द रीजन पैरेलल प्रोसेसिंग केम, तो पैरेलल कंप्यूटिंग केम। तो पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोसेसर्स लगा दिए हमने एक ही सिस्टम के अंदर। हेलो, ओके सर, हो गया काम। वी स्टडी अबाउट द MIMD आर्किटेक्चर, मल्टी इंस्ट्रक्शंस मल्टी डाटा आर्किटेक्चर। हमने बताया था कि 4 तरह के आर्किटेक्चर हैं। सिलिंस ने 4 तरह के कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को दिया। SIMD आर्किटेक्चर, सॉरी SISD आर्किटेक्चर, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा आर्किटेक्चर, SIMD आर्किटेक्चर, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा आर्किटेक्चर, then MISD architecture, multi instruction single data architecture, and finally MIMD architecture, multi instructions multi data architecture. Now today 99% systems whatever you are purchasing that come under the category of the MIMD architecture, that is the multi instructions multi data altogether. Is it okay? Yes So sir. Yes, sir. you study the systems like this way: core to DO processor, DO to core processor, dual core processor, ये सब वर्ड सुनते हैं ना आज की डेट में। That is the MIMD आर्किटेक्चर। तो मल्टीपल पोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के लिए वहां ओपन कर दिए गए, 1 क्लॉक साइकिल्स के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूशंस एक साथ अगर हो जाते हैं। ओके, ओके सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। जैन सर।